बाकी हम सब भक्तों का इस सेशन में स्वागत है। इस सेशन में अभी हम पिछले हफ्ते हमने निर्जल एकादशी का जप किया था 128 राउंड्स, काफी भक्तों ने हमारे साथ किया था। मैं एक एक करके भक्तों को इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो आकर अपने रियलाइजेशंस शेयर करें और बताएं कि किस तरह उनको भक्ति में फायदा हुआ हमारे साथ 128 राउंड्स जपा करके। पहले मैं बुलाना चाहूंगा विश्व मोहन प्रभु को। Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Am I audible, Prabhuji? Yes, perfect. थैंक यू प्रभु जी। सॉरी इस बार मैं जूम पे ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मैं उधमपुर में फुल टाइम पुजारी सेवा में हूँ, तो मंगल आरती से के रात तक मैं सेवा में था। लेकिन बीच बीच में यूट्यूब में आता रहा। मैं मंगल आरती में जब गया मैं, तब मैंने आपके लिए प्रार्थना किया, सारे भक्तों के लिए प्रार्थना किया। और पूरा दिन बहुत मुश्किल रहा क्योंकि जम्मू में इस बार टेम्परेचर बहुत 42 टेम्परेचर था और दिन भर सेवा भी था। तो जब भी लगता था नहीं हो पाएगा निर्जला एकादशी, तब मैं तुरंत यूट्यूब पे जाता था और आप सब लोग को देख के उत्साह था, नहीं निर्जला करना चाहिए। और फिर आपका जो सवेरे का जपाट था वो सुन करके आपकी कृपा से निर्जला एकादशी हो पाया। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दैट। और आपने जो 5 स्टार लेक्चर सीरीज दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी मैं हर रोज जब सवेरे नरसिंह भगवान का श्रृंगार करता हूँ तो वो महाराज का लेक्चर सीरीज सुनता हूँ, तो उसमें आपके क्वेश्चंस आते तो भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट सृजन प्रभु, और बाकी जो भी डिवोटीज को अपना अपना हार्ट शेयर करना है वो भी अपने हैंड रेस कर सकते हैं निर्जल एकादशी के रियलाइजेशन से रिलेटेड। दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Actually, I am really very grateful to you and this means like whatever I am getting through this japa. Actually, I am really very grateful because just I want to share, Prabhuji, that I was before coming into Grahastha life, I was 2.5 years in the ashram life I had. But this carrying on the Nirjala and chanting 64 rounds also used to be very, very difficult for me. And what we have changed, even though we had having association, but it was difficult. But after coming in this association and like regularly chanting morning, completing our rounds in the morning, and then doing the Nirjala Ekadasi, actually it was so relishing. And fortunately, as like Prabhuji also kept notes that I got very nice gift on this day. That is I was blessed with a child. That was all like it's great. Like I'm not able to imagine only like how Krishna is taking care of the things. Like as you told, if we focus our like on chanting, we have the faith on the chanting, and acharyas and guru and the association of the devotees, their prayers. Really, it is really, really, really good. Because when I go back and think like the things, how things happened, it was all like a great mystic only. Like it was magic, like a magic, something like that. But it is your association and the devotees association that so much I am getting. And actually, I never thought of that. I thought that when I was in the ashram 64, I used to think that it is the maximum I can reach in my life. And that too, after coming to Grahastha life, I thought that 64 also it will be difficult for me now, what to do. But in this association, everything is possible. I am like feeling now. So thank you so much, Prabhuji, for this, all the things what I am getting. And a small request, like if you would like, I would share the details of date and everything. If you can give the name to the kid, then I will be very, very happy for that, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna Prabhu, once again I'll come. My realization. Mataji, I'm not able to hear you. Yes, sir. Yes, Prabhu. Prabhu, on an ordinary day, if I don't have even one meal, I start getting severe headache. I was so much worried on that day when I started off on Nirjala Ekadashi. What is going to happen to me? So I was then,
whole day went off. I didn't even have water till the next day. I never imagined in my whole life I can do it. And that I also messaged Prabhu. I think that was the best day in my life thus far. And now I realized that I think only if we keep on doing this, only we have more happiness actually, not in our day-to-day other activities. And that was the superb day, Prabhu. And really, I liked it so much. And I think even though we were on Zoom, we were online, no? I think there is some special powers which is coming in through the devotees, which is actually reaching us. Even though we are not physically associated, something special that we were feeling so good and we could chant 128 rounds, Prabhu. It was really amazing and great. Really, that shows devotee association. And I think even online doesn't make so much of a difference now. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Prabhu. Thank you, Mataji. Thank you. Yes, Vipulji, anything else? प्रभु जी, मुझे भी अपना थोड़ा रियलाइजेशन शेयर करना है। नॉर्मली जब भी निर्जल एकादशी होती है उस दिन खास तौर से निर्जल एकादशी से मतलब कभी भी फास्टिंग टिल नून होता है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। उस दिन सुबह 8-9 बजे से कई बार भूख लगने लगती है बहुत जोर से। निर्जल एकादशी पे भी सेम चीज होती है, लेकिन मैंने पिछली बार भी नोट किया था और इस बार भी नोट किया, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे भक्तों के साथ ये चीज होती है। सुबह जब हम स्टार्ट करते हैं तो भूख प्यास सब लगता है थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी ऑस्टेरिटी पर डटे रहते हैं और भक्तों के संग में लगे रहते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे समय निकलता है फिर धीरे धीरे भूख प्यास कम हो जाती है, पता नहीं चलता, और एब्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाता है। पिछली साल भी मैंने ये चीज नोट की थी, इस बार भी ये चीज नोट की कि भक्तों का उत्साह बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि 9 बजे रात को सब लोग इंतजार कर रहे हैं 8 बजे से कि कभी 9 बजेगा, कभी हम बंद करके जाएंगे, कभी जाकर रेस्ट लेंगे और फिर कब कल सुबह होगी, कब कल प्रसाद लेंगे, ऐसा भावना किसी भक्त का नहीं था। स्पेशली इस बार 9 बजे के बाद भी मीटिंग हमने ऑफिशियली क्लोज कर दिया था, यूट्यूब लाइव बंद कर दिया था, बट डिवोटीज जपा करते रहे। और काफी सारे डिवोटीज ऐसे थे जिनके राउंड्स खत्म हो गए थे, 128 का हमने प्रण लिया था तो 128 हो गए थे, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा जप कर रहे थे क्योंकि उनको काफी आनंद प्राप्त हो रहा था। मैंने रात को 11:30 बजे तक जप किया था, तब भी काफी डिवोटीज थे। उसके बाद अभी किसी दूसरे डिवोटी को होस्ट बनाकर जाना रहता है, अभी डिवोटीज कम थे उस टाइम तो उनको इतना समझता नहीं है किसी को होस्ट बनाना है क्या करना है, तो आखिरी डिवोटी जो होस्ट बना उसको जब जाना था उन्होंने मीटिंग बंद कर दिया, 1 मिनट के बाद फिर मीटिंग चालू हो गया, डिवोटीज फिर से जुड़ गए और पूरी रात डिवोटीज ने जब किया। 2 रातों तक लगातार ये मीटिंग चालू रहा था। पिछली रात को 10 तारीख की रात को 10-10:30 बजे किसी डिवोटी ने चालू किया था, फिर उसके बाद रात को 12 बजे के बाद कुछ डिवोटीज जुड़े थे, उन्होंने पूरी रात जप किया, पूरा दिन जप किया, फिर उसके बाद पूरी रात जप किया और सुबह हमारे साथ 16 माला करने के बाद फिर उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुआ तब वो छोड़ के गए। कुछ 3 डिवोटीज यूएस से बैठे हुए थे, यूएस में निर्जल एकादशी फ्राइडे को था, तो हमारा मतलब 10 तारीख को, हमारे यहाँ 10 तारीख की दोपहर में उनका निर्जल एकादशी शुरू हुआ था। तो हमसे कुछ 10-12 घंटा पीछे चलते हैं वो लोग, तो उन्होंने अपने दिन में चालू कर दिया था, मतलब हमारी रात में। फिर जब हमारा निर्जल एकादशी का दिन चल रहा था तब उनकी रात चल रही थी, तो पूरी रात हमारे साथ जब किया। और वो डिवोटीज भी इंडिया के टाइम रात को 10:30 बजे तक बैठे हुए थे। इसका मतलब अगले दिन अपने दोपहर के 12 बजे तक पूरा दिन जब किया, पूरी रात जब किया। और उसके बाद ये नहीं कि पूरी रात हो गई तो मैं सुबह 6 बजे प्रसाद लेके सो जाऊं, वो जब करते रहे तो उनको इतना आनंद आ रहा था कि दूसरे भक्त हमारे साथ जब कर रहे हैं तो हम कैसे छोड़ दें। हमारा रात को 9 बजे ऑफिशियली बंद हो गया था, उसके बाद भी वो छोड़ के नहीं गए, वो 10:30 बजे तक, रात को 10:30 बजे तक इंडिया टाइम, दोपहर को 12 बजे तक यूएस टाइम में बैठे रहे। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि अगर हम अपनी भावना सही रखें और थोड़ा एकदम ऐसा नहीं होगा कि सही भावना रखने से 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर भगवान खुश हो जाएंगे, फिर तो वो चीटिंग हो जाएगा। भगवान हमको टेस्ट करते हैं और जब वो देखते हैं कि हाँ अभी तुम अच्छे से घिस रहे हो, अच्छे से घसीट रहे हो, फिर उसके बाद 10-12 घंटे के बाद वो कॉन्शियसनेस का लेवल अलग हो जाता है और नींद आती है, थकान होती है, लेकिन कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर होती है। तब हमको लगता है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ इस शरीर में। अगर ये शरीर नहीं होता और इस शरीर की डिमांड्स नहीं होती, नींद नहीं होती, भूख नहीं होती, तो फिर मैं चलता ही रहता, फिर तो मतलब निरंतर भक्ति कर पाता। तो ऐसी कॉन्शियसनेस जब हमारी आएगी, भगवान देखेंगे, तब शायद हमें भगवत धाम में एंट्री मिलेगी। तो थैंक यू। और जी दूसरा चीज मैं बोलूंगा, ये चीजें
प्लानिंग के बिना पॉसिबल नहीं थी। आपने मतलब मुझे तो इतनी अकल नहीं है, आपने ये पहले चीजें पहले से ही फोर्स ही कर रखी थी। ये सब प्रॉब्लम आता है, जैसे जैसे हम 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद घसीटने की मेंटालिटी आ जाती है, बस खत्म करना है, बस खत्म करना है, बस खत्म करना है। तो ऑनलाइन में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि खत्म करने वाली मेंटालिटी नहीं है, डिवोटीज और ज्यादा करना चाहते हैं, 128 से भी ज्यादा। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है कि आपने पूरा प्रोग्राम अच्छे से प्लान किया। सुबह एक लेक्चर, दोपहर में डिवोटीज थक जाएंगे तो दोपहर में एक ड्रामा, रात में फिर एक स्ट्रॉन्ग वीडियो, पासिंग अवे ऑफ प्रभुपाद या फिर पासिंग अवे ऑफ कृष्ण प्रभु। फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं, 4 घंटे का समय भी बहुत ज्यादा है हमारी कॉन्शियसनेस खराब होने के लिए। तो हर आधे घंटे में एक कोट, फिर तो राधानाथ महाराज के अमृत ड्रॉपलेट्स के छोटे छोटे वीडियोस। तो आपने पूरा मेटिकुलस प्लानिंग महीनों तक किया, उसका बेनिफिट हम सबको मिला और हमने प्रैक्टिकली देखा कि हमें सबका बहुत फायदा हुआ। थैंक यू प्रभु जी। आई कैन टेल यू वन थिंग प्रभु, आप लोग को जो लगा है, लेकिन मुझे, मैं आपको हृदय से बोल रहा हूँ मेरे डीटीज के सामने, प्रभु मुझे जो है आप लोग के साथ में रह करके शेल्टर मिल रहा है। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। मुझे लग रहा था कि आप लोग साथ में हैं तो मैं खींच लूंगा। प्रभु आप लोग भले कुछ भी कहो, मैं जो है मैं स्वार्थी आदमी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। मैं जो है आप लोग के साथ में क्यों रहता हूँ, क्योंकि मेरा जपा अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं ये करता हूँ। लेकिन जो है प्रभु आप लोग की वो ग्रेटफुलनेस है कि आप मुझे ये समझ रहे हो। लेकिन प्रभु आई एम वेरी क्लियर, मेरे को जितना भक्त ज्यादा आता है, और आप देखना प्रभु जितना भक्त लोग साथ में थे ना, उतना हमारा उत्साह बनाए रहता है। ये तो पोटेंसी है संकीर्तन की प्रभु, और ये पोटेंसी की वजह से एवरीबडी इज टुगेदर। सो प्रभु लेट अस नाउ मेक ए कमिटमेंट। अभी जितना जितना हमारा टेस्ट बढ़ते जाता है ना, इतना हमको अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस का कमिटमेंट बढ़ाते रहना है बस। और ऐसा नहीं है इट इज बाय प्रेशर और फोर्स, इट कम्स फ्रॉम विद इन। इतना जब मिलता रहता है ना प्रभु, इट कम्स फ्रॉम विद इन कि यार अभी और मुझे करना है, इतना आनंद आ रहा है, इतना इतना रिलिशमेंट मिल रहा है, फिर भी मैं लटकता रहता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ ए फूलिश पर्सन एम आई। कितना आनंद है प्रभु जी। क्या आपने किया बेसिकली, देखो थोड़ा अंदाजा अगर आप लगाओगे तो कभी बीमार होते तो भी जो है एक दिन कुछ खाते नहीं है ना, बीमार होते डॉक्टर बोल रहे थे कुछ खाने का नहीं है उस दिन, तो खाना नहीं, कुछ खाते नहीं है। लेकिन उस दिन आप देखो ना आपकी क्या कॉन्शियसनेस थी। और इस बार भी आपने कुछ भी नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया, लेकिन भक्तों के संग में रहे, क्या कॉन्शियसनेस रहेगी प्रभु जी। मैं शाम को जब हमारा जपा खत्म हुआ ना, तब मैं लास्ट मेरा राउंड खत्म हुआ, तभी मैं कृष्णा को मेडिटेट कर रहे थे। कृष्णा क्या नेक्टर दे रहे हो आप, ये जो बोल रहे हो ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णाज होली नेम। आप मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने आपको पूरा दिन जो आपको याद किया था, आप मेरे को ऐसा मेरे को बना दिया, आपने मेरे को ऐसा रियलाइजेशन दे दिया कि इससे बड़ा चीज है ही नहीं कुछ लाइफ में। आपने मेरे को सब कुछ दिया होगा, बड़ा घर दिया होगा, बड़ा पैसा दिया होगा, प्रेम फेम पावर पोजीशन दिया होगा, लेकिन उसमें मेरे को जो आनंद नहीं मिल रहा था, नहीं मिलने वाला है, वो मुझे अभी आप अनुभव करवा रहे हो। खाली आपको खाली याद ही किया, मैंने कुछ नहीं किया। This itself makes it so clear there is nothing higher than chanting the holy name. So thank you very much, Vipul ji. So nice, so nice. Yes, anything else, Prabhu? Anybody else wants to speak? प्रभु जी, प्रशांत प्रभु फ्रॉम आदिलाबाद। Oh, बोलिए 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 प्रशांत जी। हरि बोल। डिवोटी से एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके हिंदी में बोलिए, अगर आपको बिल्कुल हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश में बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। तो प्रभु जी, निर्जला एकादशी के दिन तो हम बहुत एकदम हम ये हो गए, हमारी लाइफ में एकदम परफेक्टनेस आ गया उस दिन। एक्चुअली मैंने सोचा आपने जो ये बार रूल लगाया था कि आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, वो एक रूल से मैं जुड़ गया प्रभु जी। एक्चुअल का नहीं तो 128 राउंड्स तो मैं सोचा ही नहीं था। एटलीस्ट आपने ये जो रूल में ढील दिया था, उसके वजह से एटलीस्ट मैं 32 कर लूंगा या 64 कर लूंगा, ऐसा सोच के हम ज्वाइन हो गए प्रभु जी। ज्वाइन होने के बाद ऐसा टेस्ट मिलता गया, करते गए, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। और ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप ये ढील देने के बाद भी डिवोटीज कभी कम नहीं हो रहे थे। 160 से कम कभी हुए नहीं, 160, 170, 180 नहीं। तो हम रोज देखते हैं कि 6:30 के बाद थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है ऐसा। तो हमने भी ऐसे सोचा कि अगर किसी के वजह से हमारा भी थोड़ा कम हो जाएगा, सब जाने लगेंगे तो हम भी जाएंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं प्रभु जी। तो कभी डिक्रीज नहीं हो रहा था, इतना ही हो रहा था। हमारे इसमें भी
वो आ रहा था कि नहीं हमें भी करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो 9 बजे तक आपने दिया, लेकिन 9 के बाद भी हम करना पड़ा। एक्चुअली पूरे 128 राउंड सो नहीं पाए थे, बीच में थोड़ा मंगल आरती वगैरह सेवा था, तो मैं 128 कर नहीं पाया था। 112 कुछ हुए थे, लेकिन मेरा मन ये नहीं कर रहा था कि चलो छोड़ दें, नहीं करना ही है। तो विपुल प्रभु वापिस जुड़ गए, मेरे को और अच्छा लगा, रहे ये तो चल रहा है, ये 16 राउंड मुझे करना नहीं है, सबके साथ ही करना है, बल्कि पूरे 11 बजे तक बैठ के फिर पूरा टोटल कंप्लीट 128 करके मैं गया। तो बोलने का मतलब ये है कि प्रभु जी आपके वजह से, आपके एसोसिएशन के वजह से हम कर पाए, नहीं तो नहीं कर सकते थे। नहीं तो निर्जला तो हम बहुत बार कर लेते हैं। एक्चुअली आपको बता दूं कि भगवान की कृपा से या गुरु की कृपा से लास्ट 21 एकादशी से हम निर्जला ही कर रहे हैं प्रभु जी, लास्ट ईयर से। लेकिन हर कौन से भी निर्जला एकादशी में हम इतने 128 राउंड्स या एटलीस्ट 32 भी हम अच्छी तरह से कर नहीं पाए। लेकिन ये निर्जला एकादशी के दिन भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से 128 राउंड्स कर पाए। और हम दोनों ही नहीं, पूरा आदिलाबाद में नियर अबाउट 22 डिवोटीज ने इस निर्जला एकादशी में 128 राउंड्स किया निर्जला के साथ साथ। वो अपने रियलाइजेशन हमारे मंदिर में लास्ट संडे को ही शेयर किया था सभी लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। पूरे 20 डिवोटीज ने भी, सभी ने शेयर किया था कि हम सिर्फ ये जूम ऑनलाइन आनंद वृंदावन प्रभु की कृपा से ही हम कर पाए, नहीं तो हम 16 राउंड ही करना बहुत मुश्किल है, और ये 128 कहाँ से कर पाते हैं, ऐसा उनका रियलाइजेशन था प्रभु जी। तो हम सभी के तरफ से, आदिलाबाद कांग्रीगेशन के तरफ से आपका हम हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कि हमारा जो भक्ति है कंटिन्यूएशन में रह पा रहा है आपकी कृपा से प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। आई कैन ओनली से वन थिंग, ये जो है ना, खास करके मुझे मालूम है कि हम लोग निर्जल एकादशी के दिन थोड़ा रिलैक्सेशन क्यों रखते हैं, क्योंकि मेरे घर पे जो है ना प्रभु, पहले से हमने ये रखा था। उसमें भी सुबह में 5 से रात को 8 बजे तक हमने सबको बोला था 128 कर लेने का, और कुछ नहीं, कोई भी जा नहीं सकता है। उसमें क्या हुआ, हमारे घर पे जो है प्रभु, कोई डिवोटीज को जो है थोड़ा डायबिटीज का प्रॉब्लम हुआ था, और उसमें जो है उसको पानी पीना जरूरी था, थोड़ा शुगर लेना जरूरी था, और उसकी हेल्थ इतनी बिगड़ गई, और उसने, और वो बहुत रिजिड आदमी था, मेरे जैसा ही था वो। नहीं प्रभु आपने बोला है मैं जाऊंगा नहीं इधर, और उसमें जो है सब लोग को हुआ कि ये फेनेटिज्म हो गया है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने ये रूल बनाया कि भाई ठीक है, जो सिंसियर हो गया। इसलिए मैं हमेशा वापस बोलता रहता था कि भाई आइडियल ये है, आइडियल ये है, आइडियल ये है, मैंने जिसपे जो है ना कोई ऐसा ना समझे कि चलो भाई लाइसेंस है तो भाग जाने का, लेकिन आइडियल हमेशा बोलते रहता था, जिससे जो है लोग ढीला ना हो जावे। लेकिन मुझे वो डर भी लगता था कि कोई जो है बूढ़े व्यक्ति हो गए, कि जिससे का कोई हेल्थ इश्यू होगा, क्योंकि देखो प्रभु जी, जिसको डायबिटीज होता है ना, उसको रेगुलरली कुछ आफ्टर सम इंटरवल के बाद में कुछ लेना पड़ता है। अगर कोई बूढ़ा आदमी भी रहता है, उसको भी थोड़ा बहुत खाने की जरूरत होता है। और गर्मी जो है प्रभु बहुत थी, और उस समय मैं देख रहा था गर्मी का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा था ना, कि मुझे डर लगा कि ये जो है ये इतना स्टैंडर्ड ऊंचा रखेंगे और कोई भक्ति की तबीयत बिगड़ जाएगी तो वो बराबर नहीं होगा। उससे बेहतर है ऐसा रिलैक्सेशन रखो। लेकिन नाउ आई कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग इन 192. 192, of course I am not going to speak anything right now. विपुल प्रभु को थोड़ा बहुत उन्होंने कंसेंट दिया मुझे, और हम आपके पास से सब लेंगे। हम बहुत इस बार 192 राउंड्स लास्ट टाइम से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने वाले हैं प्रभु। हमको जो है ऐसा स्ट्रिक्ट और बनाते जाएंगे हम, जिससे जो है हमको अभी जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि जो है नाउ बॉयल द मिल्क, हमको जो है नाउ हमको बॉयल करना है। हमको अभी जो है बहुत सुंदर ग्रुप मिला है, हमको वो ग्रुप के अंदर जो है भक्तों को खाली वहां पे स्टैग्नेंट नहीं रखना है प्रभु, और ऊपर लेके जाना है। पर अगर हम साथ में रहेंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे प्रभु। और इसलिए जो है प्रभु, वी विल बी कीपिंग सम वेरी स्ट्रिक्ट रूल व्हिच विल ऑफ कोर्स आई विल नॉट डू एनीथिंग प्रभु जी, प्लीज नोट इट। हम सबका व्यूज लेंगे, हम सबकी पोलिंग लेंगे, अगर सब डिवोटी एग्री करेंगे तभी हम डिसीजन लेंगे। लेकिन देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड टू डू इट, क्योंकि अभी जो है प्रभु मुझे अभी समझ में आ गया है कि अभी डिवोटी का स्टैंडर्ड अच्छा आ रहा है, तो अभी वो अच्छा स्टैंडर्ड के अंदर स्टैग्नेंट नहीं रहना है। जैसा हमारे गुजराती में बोलते हैं कि जब भी राइट टाइम होता है ना, जब बहुत ही अग्नि एकदम स्ट्रांग होती है और एकदम बराबर इससे वो लोहा बराबर गर्म होते थे ना, तभी उसको हथौड़ा मारने का चाहिए, तभी वो टूटता है, नहीं तो टूटता नहीं है। उसी हिसाब से जब डिवोटीज का स्टैंडर्ड बढ़ गया रहता है ना, तब भी उस समय जो है हमको डोज बढ़ाते जाना चाहिए, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ज्यादा से ज्यादा ऊपर होते जा रहे हैं। तो वी विल डेफिनेटली बी डूइंग इट प्रभु।
but but no doing it without whimsically. सब डिवोटी का कंसेंट लेंगे, सब डिवोटी अगर एग्री करेंगे तो रखेंगे, अगर एग्री नहीं करेंगे तो पहले के जैसे ही रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु। बस एक काम करना है कि हमको ये ट्रेन में बैठ के रहना है। ट्रेन तो कैसा भी डेस्टिनेशन जाएगी, ये हमको पक्का है कि आप चला रहे हैं ट्रेन, इसलिए तो ट्रेन जाएगा ही। बस हमारा काम एक ही है कि वो ट्रेन में बैठ के रहना है, उतरना नहीं। So nice. Thank you very much, Prabhu. Thank you. Yes, Vipul Prabhu, anything else? Sharmila Radhika Mataji can share her realizations. Yeah, Hari Bol Mataji. Hare जी, Krishna. हाँ, दंडवत प्रणाम। और कलकत्ता में जब आप आए थे, एक बात पहले मैं बोलती हूँ, मेरा थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। और मुझे मालूम नहीं आप समझे क्या नहीं समझे, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ। तो मैंने कन्हैयालाल जायसवाल बोल के जो एक प्रभु जी है यहाँ कलकत्ता से, उन्हीं मेरा गुरु भाई है। तो उन्होंने मुझे आप लोग का ये दिया है, लिंक दिया है और इंस्पायर किया, माता जी आप कर सकती। तो मैं 2 महीना पहले ज्वाइन किया और फिर भी मैं तबीयत खराब हो गया, किडनी में स्टोन हुआ और लीवर खराब हो गया, किडनी में पानी जमा है। ऐसा हालत में निर्जला उपवास का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कन्हैयालाल प्रभु जी मुझे बताया तो आप थोड़ा पानी पी के कर लीजिए। लेकिन भगवान का दया है और आपको कृपा है, आप इतना इंस्पायर किया तो मैंने डायरेक्ट यूट्यूब में नहीं, डायरेक्ट बैठ गई एंड सोची थी प्रभु जी तो बताया है एक दिन कृष्ण के लिए है, एक दिन कृष्ण के लिए है। मैं ये सोच के आप लोग को सत्य करते 11:30 तक किया। तो भगवान का इतना दया है, मेरा प्यास नहीं पाया है, मेरा तकलीफ नहीं खराब है और खुदा भी नहीं पाया है। मुझे ना चमत्कार आ गया है। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे ये चमत्कार हुआ कि मैं इतना पेशेंट हूँ, मैं दवाई भी उस दिन नहीं लिया, तो कैसे मैं किया। तो इसलिए मैं आपको मैंने आपसे बहुत मैं ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू मुझे आपने इतना इंस्पायर किया और बिल्कुल प्रभु जी मुझे इंस्पायर किया ये करने के लिए। एंड मैं पहला दिन वो पानीहाटी का अगल बगल में मैं रहती हूँ, प्रभुपाद जी के बोला है, प्रभुपाद जी मैं अगर नहीं जाने जी कर सकती और नहीं सकती, लेकिन तबीयत खराब मत कीजिए, मेरा घरवाला का मुझे बहुत डटेगा। ये सब मैं सोच के फिर भी किया, लेकिन तबीयत इतना अच्छा था तो मैं तो सरप्राइज हो गया कि ये कैसे हुआ कि मेरा पेशेंट हूँ, दवाई नहीं लिया लेकिन बहुत अच्छा किया। तो मैं बहुत परमानंद मिला। आपको आपसे प्रणाम है, सब डिवोटी का प्रणाम है। ये कैसे चमत्कार हुआ मुझे मालूम नहीं, आप कृपा कीजिए, मैं अगला हरिदास ठाकुर का तिरुभक्ति में मैं कर सकती। हरि बोल। थैंक यू, हरे कृष्ण। यस विपुल जी, एनीथिंग एल्स? जी, Ajay Munde, Mayuri Munde and Sunanda Munde Mataji's families wants to share. Yeah. हरी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरी बोल माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपकी वजह से हमारा भक्ति में बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। और उस दिन आपने बोला था कि निर्जला एकादशी के बाद में भगवान से प्रे करना कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सेल्फलेस सेवा करना है। और इतने साल हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के भी हमारा कभी ऐसा हिम्मत नहीं होता था भगवान को बोलने का कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपने हमको वो कन्विंस किया और अभी हमारा कॉन्शियसनेस इतना तो हो गया है प्रभु जी, अभी दावे के साथ आपको बोल सकते हैं कि हम गोपीनाथ के सामने खड़े रह के ये बोल सकते हैं कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सेवा करना है। और ये बस आपकी वजह से ही हुआ है प्रभु जी, अदरवाइज हम तो ऐसा, हमारा ये स्टैंडर्ड कभी आता ही नहीं प्रभु जी। हम तो हमेशा वो भिखारी के जैसा कुछ ना कुछ मांगते हैं, प्रॉब्लम आने के बाद तो मांगते ही, लेकिन अभी माइंड इतना फिक्स हो गया, अभी कुछ भी लाइफ में होने दो, अभी हम गोपीनाथ से यही करेंगे कि आप ही चाहिए, आपकी सेवा कुछ नहीं चाहिए और बस आपकी सेवा करनी है। अभी बाकी अभी इधर इतना कम टाइम मेरा तो बचा है, मुझे लग रहा है कि प्रभु जी अभी मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं मांगूंगी ही नहीं। और पूरा कॉन्शियसनेस ही ऐसा बन गया है कि अभी कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से, ये सिर्फ आपने कराया प्रभु जी, अदरवाइज ये होता ही नहीं।
क्योंकि इतना साल इतना अच्छा एसोसिएशन है, मंदिर है, भक्त है, फिर भी हम लोगों को ऐसा कभी माइंड में नहीं आया कि हम भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे, ओनली बोलेंगे कि आपका सेवा करना है। ऐसा कभी माइंड में नहीं आया, और आया भी होगा तो डर लगा होगा प्रभु जी, 100% डर लगा होगा कि आज बोलेंगे नहीं और फिर कल मांगेंगे। ये डर है, डर की वजह से कभी हमने ऐसा खुला भगवान से बात ही नहीं किया। और अभी आपके वजह से मैं तो खुला हो गई हूँ प्रभु जी। अभी मैं गोपीनाथ को बोल सकती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा करनी है। ये कॉन्शियसनेस इतना सुपर है प्रभु जी, और हमको इतना हैप्पीनेस मिल रहा है उससे। और निर्जला एकादशी तो गया, लेकिन ये अभी लाइफ के एंड मोमेंट तक ये ऐसा ही रहना चाहिए, बस यही हमारा ये कोशिश है प्रभु जी। आप हमारे लिए प्रे करो कि अभी जो आज जो हमारा कॉन्शियसनेस है ना मेरा, वो मेरे लाइफ के एंड तक ऐसा ही बना रहे कि मुझे भगवान आपकी बस सेल्फलेस सेवा करनी है, बाकी कुछ नहीं। ये इतना हैप्पीनेस मिल रहा है प्रभु जी, उस दिन से ये ध्यान में भी आता है ना तो बहुत आनंद मिलता है कि हमारा स्टैंडर्ड इतना प्रभु जी ने बढ़ा दिया कि अभी हमको भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं। और बहुत आनंद मिल रहा है। और सच में प्रभु जी, अगर आप नहीं मिलते ना तो हम ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस चीपली ले लेते, ये दो, ये करो, बच्चों को ये प्रॉब्लम है, पति का ये प्रॉब्लम है, गृहस्थी का ये प्रॉब्लम है, हम ऐसे ही मनुष्य जन्म गवा देते प्रभु जी। अभी हमको इतना आपकी वजह से बच्चों में तो बहुत प्रोग्रेस हो गया। अजय ने इतना सीरियसली ले लिया है कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप बोलते थे ना किसी भी माँ को माँ बनने का हक नहीं है अगर वो अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं देते। मैं एवरीडे भगवान से माफी मांगती थी कि मेरे बच्चे के जन्म से पहले मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस पता नहीं था, मैंने अज्ञान में जन्म दिया है, मुझे क्षमा करो। लेकिन आपकी वजह से अभी मैं वो भी चिंता से मुक्त हो गई हूँ प्रभु जी। आपने अजय को इतने अच्छे से पकड़ा है, मैं श्योर अभी तो मैं इतनी मतलब मैं हैप्पी हूँ प्रभु जी के पास। मुझे यहाँ पर आना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में टिकने का और यहाँ पे आने का भी इतना आनंद हो रहा है कि सच में मैंने बहुत लाइफ में इतना प्राप्त किया है ना प्रभु जी, अभी कुछ इच्छा ही नहीं। वो जो प्रभुपाद जी लास्ट स्टेज में बोले थे कोई इच्छा नहीं है, वो तो मरने के समय पता नहीं मेरा कॉन्शियसनेस होगा क्या नहीं, लेकिन आज हो गया है प्रभु जी आपकी वजह से। अभी कोई इच्छा ही नहीं है, सब मतलब इच्छा समाप्त हो गई है, भौतिक जगत से कुछ पाना ही नहीं। और वो दूसरा जो आप हमेशा बोलते हैं नो फ्री लंच, वो तो इतना दिमाग में बैठा है ना प्रभु जी। अभी मैं तो बोलती हूँ दुनिया का कोई भी ग्रिड हमको पकड़ नहीं सकता है प्रभु जी। अभी कुछ भी आएगा तो हमको लगता है ये फ्री नहीं है, इसका कीमत क्या चुकानी पड़ेगी पता नहीं। इसलिए अभी हमको ना प्रभु जी कोई भी लालच मार नहीं सकता है। मतलब ये दो चीजें तो इतनी पक्की हो गई है। हाँ, हमेशा बोलते हैं नो फ्री लंच, ये कुछ भी है, ये फ्री नहीं है, इसका कुछ ना कुछ हमको देना पड़ेगा। इसलिए अभी हमको ना किधर भी हम जाते हैं ना प्रभु जी, कुछ ऐसा फ्री का मिल रहा है ना तो ये सब मंदिर में भी जाते थे, ये फ्री नहीं है बाबा, ऐसा लगता है कि ये इसके लिए भी हमको कुछ तो पे करना है। मतलब ना हर चीज पर हमारा भी इतना ना सुबह से शाम तक आपका ही चर्चा रहता है प्रभु जी घर में। वो बोलते हैं ना हम जिस व्यक्ति का गुणगान करते हैं उसका 10% कर्म आता है, आपका 10% भक्ति हमारे घर में आ रहा है प्रभु जी। हम लोग सुबह से शाम तक सोते हैं तो भी बोलते हैं सुबह बाजू जी प्रभु जी से मिलना है, जल्दी सो जाओ। उठते हैं तो भी प्रभु जी आए क्या देखो, अरे प्रभु जी आए क्या देखो, यही होता है प्रभु जी। सच्ची में आपने ना हम लोगों का लाइफ बना दिया है प्रभु जी, बहुत मस्त लाइफ बन गया है। हम लोग को पता भी नहीं था कृष्णा कॉन्शियसनेस का इतना हायर स्टैंडर्ड है। हम जस्ट चैंटिंग कर रहे हैं, एसोसिएशन में रह रहे हैं, भगवत धाम जाना है, कैसे जाते हैं पता नहीं, उसके रूल्स क्या है पता नहीं। अभी पता चला नो फ्री लंच का फॉर्मूला याद आता है, हर टाइम हर चीज याद आता है। प्रभु जी ने ऐसा बोला है, प्रभु जी ने ऐसा, दिन भर हम लोगों में यही चर्चा रहता है प्रभु जी। और बच्चों का तो लाइफ आपने बना दिया है सच्ची में। कुछ साल पहले हम सोचते थे कि हम राधा गोपीनाथ में क्यों जाते हैं उधर, तो हम लोगों को कोई जानता भी नहीं, कोई पहचानता भी नहीं। इतना कभी कभी टेंशन होता था कि वो लोगों का इतना स्टैंडर्ड है लेकिन हम लोगों को उससे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। अभी पता चला इतने साल रगड़ने के बाद, अब 14-15 साल हो गया राधा गोपीनाथ से जुड़े हैं, अभी पता चला कि गोपीनाथ ने हम लोगों को, वो बोलते हैं ना भगवान अगर आपको शुद्ध भक्त देते हैं तो उसके बाद भगवान के पास देने के लिए कुछ रहता ही नहीं। अभी गोपीनाथ ने यही कर दिया है, आपको हमारे से कनेक्ट करके अभी हाथ ऊपर कर दिया है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, जो हायर था आपको दे दिया है मैंने। सच्ची में प्रभु जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा लाइफ तो बन गया है प्रभु जी सच में आपकी वजह से।
हम लोग माता तो जी, इतने ढीले थे, बहुत ढीले थे। माता जी ये जो है ना, ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, डेफिनेटली वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि ये जो कुछ भी मिला है ना, वो मेरे मेरे गुरु महाराज से मिला है। मेरा भी यही भावना थी, जो कुछ भी पहले बिजनेसमैन था, रुपया कमाना था, ये आगे बढ़ना था। लेकिन जब महाराज ने मेरे को बराबर ठोका 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 करके बताया कि जब तुम भावना ये रखोगे, कुछ चाहिए नहीं मुझे तुम्हारे से कृष्णा, उसमें जो आनंद मिलने वाला है ना, वो आनंद जो है सब चीज मिलने से बाद में भी नहीं मिलने वाला है। और मैंने जब मेरे लाइफ में अनुभव किया, तब मुझे समझ में आया कि जो मेरे को गुरु महाराज ने दिया है, वो उतना ऊंचा चीज दे दिया है कि इसकी कंपैरिजन में ये भौतिक दुनिया में कुछ है ही नहीं। सो यू शुड बी ग्रेटफुल नॉट टू मी, बट यू शुड बी ग्रेटफुल टू राधानाथ स्वामी। ये जो कुछ भी है वो राधानाथ महाराज ने दिया है, वो मैं एग्जैक्टली वही रिपीट करता हूँ माता जी। एग्जैक्टली आई एम रिपीटिंग एंड मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ माता जी। मैंने जो है मैंने देखा है लाइफ के अंदर। मैं तो बिजनेसमैन था, मैंने लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद में देखा है कि इसके अंदर क्या क्या सब्सटेंस है। और तभी मेरे को समझ में आया कृष्णा भावनामृत का डेप्थ बहुत ऊंचा है। जो आनंद मिल रहा है, जो आनंद, जो रिलिशमेंट और जो नरिशमेंट मिल रहा है, इट इज अनकंपेरेबल एंड एवरीथिंग गोज टू राधानाथ स्वामी। सो वेरी हैप्पी, जस्ट गो ऑन, ऐसे ही जिंदगी निकालेंगे हम, वेरी फोकस करते जाएंगे और धीरे 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 हम स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे। इतना बढ़ाते जाएंगे, इतना बढ़ाते जाएंगे हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्टैंडर्ड, कि जिससे जो है एक फेज ऐसा आ जावे कि हमको कृष्णा को भूलना है तो भी हम कृष्णा को भूल ना सके। दिस इज मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे गोपियां जो है ना, गोपियां जो है, जब उद्धव आए, जब उद्धव को गोपियां ने कहा, उद्धव आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जब हम कृष्णा को भूल जा सके, हम भूल ही नहीं पा रहे। तब उद्धव को मालूम हुआ क्या ये गोपियों का स्टैंडर्ड है, इसको भूलना है और वो भूल नहीं सकते, हमको याद करना हम याद नहीं कर सकते। तो जो है अगर हमारा यही स्टैंडर्ड ऐसा ही करते रहेंगे एब्सोल्युटली सेल्फलेस, प्लीज रिमेंबर, एब्सोल्युटली जब सेल्फलेस होता है ना, जो सेल्फलेसनेस के अंदर जो प्रेम का जो आदान प्रदान होता है ना, वो आदान प्रदान इतना मीठा होता है और इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो गाढ़ा प्रेम की वजह से जो है कोई भी व्यक्ति को निकलने की इच्छा ही नहीं होती। और फिर वो प्रेम के अंदर हम इतना हैवी फिलॉसफी भी बोलेंगे ना, वो हैवी फिलॉसफी भक्त लोग एब्जॉर्ब भी करेंगे, क्योंकि उनको सबको पता है यहाँ पे सब सेल्फलेस डिवोटी सेवा कर रहे हैं, तो ये जो भी बोल रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। उसके वजह से वो पूरा पेनिट्रेट हो जाता है लाइफ के अंदर। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू पीपल। प्रभु वी लेट इट गो ऑन फॉर सम मोर टाइम। आई एम सॉरी बट डिवोटीज आर रियली शेयरिंग देयर नाइस कॉन्शियसनेस, लेट अस डू इट प्रभु। एनीबॉडी एल्स वांट टू अभी मैं एक ऐसे डिवोटी को बुलाना चाहूंगा, प्रसाद प्रभु को, जिनकी सेवा के बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता। और प्रसाद प्रभु इतना अच्छे से सेवा कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे होते हैं ना जो इतना अच्छे से सेवा करते हैं कि आप उन पर निर्भर हो जाते हैं और आप उनका फायदा उठाने लगते हैं। तो प्रसाद प्रभु से मैं क्षमा भी मांगना चाहूंगा, उन्होंने इतने अच्छे से सेवा किया कि मतलब मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और उनका शायद मैंने काफी फायदा भी उठाया है। तो प्लीज। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। Before you talk, I have to mention one thing. Yes, Prabhu. You can say, anybody can say anything, but what I could understand right now is, because I'm watching Prabhuji. Yes, Prabhu. You are the backbone. ऐसे मालूम है ना, बॉडी के अंदर बैकबोन के बिना जो है बॉडी खड़ा नहीं रह सकता है। प्रभु ये प्रोग्राम का बैकबोन है। सुबह के टाइम पे जो है प्रभु, मैं हमेशा अभी पिछले 4-5 महीने से मैं देख रहा हूँ, सुबह में जो है प्रभु यूट्यूब एकदम राइट टाइम पे चालू हो जाता है, जूम भी चालू हो जाता है राइट टाइम पे। एवरीथिंग इज सो डिसिप्लिन प्रभु। This is, I can say you from my heart, Prabhu, this is because of you. And I pray that Prabhu, जो है आप जो है लाइमलाइट में नहीं हो, लेकिन प्रभु I can tell you from the core of my heart, we are so indebted to you, Prabhu. So much indebted to you, Prabhu. This program क्या है प्रभु जी, I can understand, ये विपुल प्रभु का हेल्थ इशू खराब आ गया, तो वो बेचारे जो है अरूप प्लस अभी ये यूट्यूब ये सब ऑनलाइन ऑफलाइन चालू हो गया, तो उसको जॉब के अंदर जो है प्रॉब्लम्स होने लगे, भागा भागी होता है। प्लस पार्थ गोविंद प्रभु जो है उसका सॉफ्टवेयर के अंदर रात को 2-2, 3-3 बजे कभी कभी आता है, उसको सुबह में जल्दी राइट टाइम पे उठ करके वो चालू करना, ये मेरे को हमेशा टेंशन रहता था प्रभु। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को समझता ही नहीं है, कितना भी कोशिश करता हूँ मेरे को जाता ही नहीं अंदर। तो मुझे लगा कि मैं इसके बारे में बराबर नहीं हूँ। वी रियली नीडेड वन पर्सन
who can really do it in a very systematic way and a very punctual way. Prabhuji, punctual, absolutely, Prabhuji. Consistency has to be most important thing, and which I'm so grateful that you are maintaining that consistency. So, Prabhu, so much indebted to you, so much indebted to you. All I can say is, Prabhu, this program is going on smoothly. That you are one of the backbone for that. So, thank you very much. Thank you. Thank you, Prabhu. अभी बोलिए, बताइए क्या कहना है. I'm overwhelmed actually. निर्जला एकादशी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगा और उस दिन सेवा का मौका भी मिलेगा. बट उस दिन मैंने सोचा था कि 4 बजे हमेशा की तरह उठ जाएंगे, बट दैट वूल ऑफ नाइट आई कुडंट स्लीप ओनली. तो 3:30 बजे मैंने चालू किया जपा, और टू माय सरप्राइज़ वहाँ पे ऑलरेडी 10-12 डिवोटीज थे. और प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं, एक्चुअली रोज़ मैं जब भी आता हूँ तो 4 बजे मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि ये सब एक्चुअली डिवोटीज़ की वजह से है. डिवोटीज़ का इंथुजियाज़म इतना है प्रभु कि 4 बजे भी वहाँ पे 6-7 डिवोटी हमेशा रहते हैं, और वो जपा करने के बाद 4:30 बजे प्रॉपर मंगल आरती करने के बाद वापस अपने जपा में जुड़ते हैं. तो ये एक्चुअली उन सब का एंथुसियाज़म का परिणाम है कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ. उस दिन प्रभु प्लानिंग आपका बहुत ही अच्छा था. मतलब जो भी मेटिकुलस प्लानिंग था, मतलब उसमें कुछ दो राय ही नहीं है. और विपुल प्रभु गाइडेंस के लिए थे, और पार्थ गोविंद प्रभु भी थे, और एंथुसियाज़म काफ़ी अच्छा था. स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा जो जीवन कृष्ण प्रभु का ग्रुप था. मतलब उन्होंने तो स्टैंडर्ड्स काफ़ी बढ़ा दिए थे. मतलब जो उन्होंने चालू किया, मुझे लगता है 12:30 के करीब एक ग्रुप में चैंटिंग वो कर रहे थे बहुत लाउडली. तो इट रियली बूस्टेड आवर कॉन्फिडेंस, एंड देन आई कुड फील कि नो नाउ दिस इज़ पॉसिबल. और मैं बहुत खुशी होती है ये बताने में कि उस दिन मेरे पेरेंट्स भी अच्छा जपा कर पाए. मेरी माँ ने 128 राउंड्स किए, और मेरे पिताजी डिस्पाइट हैविंग ही इज़ डायबिटिक पर्सन, तो वो भी 90 राउंड कर पाए. और एक्चुअली शाम को 7:30 बजे तक मेरे भी 32 राउंड बचे थे, और मेरे मदर के माँ जी के 50 राउंड बचे थे. तो मैं सोच रहा था अभी कैसे होगा, बट हम डटे रहे और करते रहे, और डिवोटीज़ भी थे. मतलब मैं 11:20 तक मेरे राउंड फिर हो गए. विपुल प्रभु थे तब, और मेरे माँ के राउंड फिर 1 o'clock तक ख़त्म हो गए थे. तो आई एम सो मच इंडेटेड प्रभु. एक्चुअली मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ. जो ये सब जो हम सब लोग कर रहे हैं, ये एक्चुअली अकेले में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. मतलब ये गलत फहमी में कोई रहना नहीं चाहिए. जैसे सूरज चमकता है, तो जैसे हम अभी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये हमारी गलतफहमी है कि ये तो आधा सच है कि हम हमारे आंखों से देख पा रहे हैं. पूरा सच तो ये होता है कि सूरज है इसलिए हम देख पा रहे हैं. वैसे ही सारे भक्त लोग हैं, इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं. आई एम सो मच इंडेटेड एक्चुअली टू यू विपुल प्रभु, स्पेशली पार्थ गोविंद प्रभु, टू guide me during a lot of complex and difficult situation actually. और ये सब मतलब एक दूसरे का वो जो मिठास है प्रभु, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपने जो मिठास अनुभव किया है महाराज के सानिध्य में, और आप जो हमें वो शेयर कर रहे हैं, तो ये उस सब का परिणाम है प्रभु कि ये जो मिश्रण उसमें से उभर कर आ रहा है. और हर जो भक्त है इस ग्रुप का, वो सिंसियरली ये सब कर पा रहा है. ये आपकी कृपा है प्रभु. ये कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं है प्रभु. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु कि मैंने भगवत गीता 2004 में मतलब मेरे पास आई थी किसी की कृपा से, और वो उसका फर्स्ट पेज खोलने में मुझे 2020 हो गया प्रभु. तो ये कृपा के कारण पॉसिबल नहीं है प्रभु. मतलब किसी भक्त का कृपा होना बहुत ज़रूरी है इसमें. तो वी शुड नॉट बी टेकिंग इट लाइटली. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स, वी टेक इट सो लाइटली एंड वी मिस आउट सो मैनी ईयर्स. सो ये सच बात है प्रभु. और मैं स्पेशली आई एम सो इंडेटेड टू यू.
एक्चुअली जो स्पार्क होता है प्रभु, ये स्पार्क को हमें बढ़ाना पड़ता है। तो यू आर टू टॉर्च बियरर प्रभु, आपके पास वो मशाल है प्रभु, कि आपने जो स्पार्क राधानाथ स्वामी ने आपको दिया है प्रभु, वो मतलब इतना मतलब सेवान्वित होके वो स्पार्क हर एक डिवोटी को आप दे रहे हो, और काफ़ी एंथुसियाज्म से, मतलब डिस्पाइट बीइंग सो बिजी शेड्यूल, इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद आप सबको दे रहे हो। इसके वजह से मतलब हमारा भक्ति में मिठास बढ़ गई है प्रभु। सो थैंक यू सो मच। एक दिन कभी प्रभु ऐसा, मतलब मैं हमेशा ये विश रखता हूँ कि सारे डिवोटीज़, मतलब हमारे जो 400 डिवोटीज़ थे, वो एक जगह पे बैठ के साथ में जपा करें, ऐसा मेरा हमेशा से इच्छा रहा है। तो एक दिन शायद ऐसा सच में आ जाए। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। वो एक दिन जब भी आएगा ना प्रभु, उस दिन हम खाली 16 माला नहीं करेंगे, हम 192 राउंड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, सो नाइस, सो नाइस। जय हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल। यस विपुल प्रभु। प्रभु जी, प्रसाद प्रभु के बारे में एक चीज मुझे खास तौर से बताना है। ये हमारे पूरे ग्रुप के लिए बहुत अच्छी बात हुई है कि हमें प्रसाद प्रभु मिले। ये कैसे जुड़े हमारे साथ और स्टार्टिंग में क्या हमारा आदान प्रदान हुआ था, वो थोड़ा शेयर करना चाहूंगा मैं। वो बहुत ही मतलब स्ट्रेंज था। तो स्टार्टिंग में जब ये जुड़े थे तो सैटरडे संडे को पूरे टाइम बैठते थे, और उस टाइम शायद ये काउंटर पे जपा कर रहे थे, और हम देखते थे कि प्रभु जी कैसे जपा कर रहे हैं। प्रभु जी का वो फेस बिल्कुल स्टिल है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं 3 घंटे से। तो ऐसा फील होता था कि प्रसाद प्रभु से मिसक्रिएंट, थोड़ा ट्रबल मेकर है, ऐसा फील होता था। तो स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसा सोचा कि भी इनको जपा ग्रुप से निकाल ही देंगे। तो उस लेवल तक ऐसा लगा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो अपना, हम बाल बाल बच गए वरना हमारे पूरे ग्रुप का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और उसके बाद जो इन्होंने अपना सिंसियरिटी दिखाया, क्योंकि पूरे समय तो बैठते ही थे, फिर उन्होंने काउंटर से फीडबैक पे आ गए, और फिर उसके बाद तो सबको पता है मतलब क्या चल रहा है। वैसे कुछ डिवोटीज हैं जो देखने में बहुत ऐसा लगता है कि दे आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड एंड दे आर ट्रबल मेकर, और उनको मतलब निकाल देना चाहिए। लेकिन उनको बस अगर थोड़ा सा समय मिल जाए तो उसके बाद ऐसा लगता है कि ये हमसे तो भक्ति में इतना आगे है, हमें वहां पहुंचने में पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट इज प्रेममयी सत्यभामा माता जी। ओ हरि बोल माता जी, दुबई। यस माता जी, बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। जैसे सुनंदा माता जी ने और प्रसाद प्रभु ने कहा, वो तो नो डाउट प्रभु जी एकदम 100% करेक्ट है, हम अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं। और इस बार निर्जला एकादशी पे मेरे लिए भी एक चमत्कारी था कि मेरे प्रभु आपके एसोसिएशन के कारण जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया, वो भी इस चीज को महसूस किए, और उन्होंने भी सबके साथ में प्रभु रात तक उन्होंने 108 राउंड किए थे। जैसे सब प्रभु जी विपुल प्रभु बैठे थे तो वो बोले अरे विपुल प्रभु भी बैठे हैं और बाकी सब डिवोटी भी बैठे हैं तो और कर लेता हूँ। मैं सो गई थी जाके, मुझे नहीं लगा था कि वो करेंगे इतना, लेकिन वो रात तक बैठे थे और फिर जब सब वो मीटिंग बंद हुई तो वो जाके सोए, नहीं तो नहीं सोते थे शायद। फिर वो सुबह उठ के वापस बोले मेरे 20 राउंड है। मैं सुबह उठ के फिर वापस से वो 2:30 बजे उठ गए, उनको नींद नहीं आई थी तो सुबह उठ के उन्होंने 20 राउंड दोबारा किए, फिर वापस से 16 राउंड घूमने गए, फिर 16 राउंड किए, तो फिर इस तरह से उन्होंने 128 किए। और अभी तो मेरे आपसे मिलने के बाद मेरी एक जो चिंता है वो हमेशा के लिए चली गई नहीं, अभी वो स्पार्क में लग गया प्रभु जी आपके एसोसिएशन से। अभी वो डेली कर रहे हैं प्रभु जी। माता जी अभी आपको जो है ना, आपको स्टैंडर्ड ऊपर रखना पड़ेगा। आप अगर ढीले हो जाएंगे ना तो प्रभु जी बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या चल रहा है, तुम जो है इतने समय से भक्ति कर रही हो। देखो, और एक फेज ऐसा भी आएगा, मैंने ऐसा कपल्स देखे हैं माता जी कि वो कपल्स के अंदर जो है जब भी कोई भी दो में से एक व्यक्ति जब सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस ले लेता है ना, तो वो दूसरा व्यक्ति से बहुत आगे निकल जाता है। आई गिव यू वन एग्जांपल, भले 2 मिनट जाएगा बट आई वांटेड टू मेक वन एग्जांपल। एक कपल ऐसा था जहां पे प्रभु जी जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत सीरियसली ले लिया और माता जी सीरियसली लेती नहीं थी। और वो जो है वो प्रभु जी ने फिर क्या किया, उसके 2 बच्ची थी, दोनों बच्चियां थी,
दोनों लड़कियां थी, तो वो दोनों लड़कियों को उसने हॉस्टल में डाला, क्योंकि जो है उसको लगा कि ये जो है माँ जो है उसको बराबर अच्छा कृष्णा कॉन्शियसनेस दे नहीं रही है। और जो है वो रोज सुबह में प्रभु जी जो है खुद कुकिंग करते थे पूरे सबकी फैमिली का, दोनों बच्चियों का, अपना खुद का और अपनी वाइफ का भी। उसकी वाइफ को भी बोल दिया तुम कुछ मत करो, मैं कुकिंग करूंगा। तो सुबह में मॉर्निंग प्रोग्राम में जाते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बाद में घर पे आते थे, कुकिंग करते थे, अपनी वाइफ के लिए छोड़ देते थे, और फिर अपनी बच्चियों को हॉस्टल में जाकर के दे के जाते थे, और फिर जॉब में जाते थे। और फिर रात को आने के बाद में जो है वापिस जो है वो उतना ज्यादा ही प्रसाद बना लेती थी, तो अपने रात को जो है वापिस अपनी बच्चियों को मिलके आते थे कि सब बराबर ठीक ठाक चल रहा है ना, और फिर घर पे आते थे। इस तरह से वो अपनी लाइफ जी रहे थे। और जब वो माता जी ने देखा कि मेरा हस्बैंड इतना संघर्ष कर रहा है, खाली मेरी लड़कियों को कृष्णा कॉन्शियसनेस देने के लिए और मेरे को अच्छा कृष्णा कॉन्शियसनेस देने के लिए, क्योंकि उनको पक्का पता था कि मैं अगर बराबर प्रसाद कृष्णा कॉन्शियस प्रसाद बनाऊंगा, और उनकी वाइफ को भी बोल दिया था तुमको कुछ भी खाने का नहीं है, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए। और फिर बाद में जो है एक ऐसा फेज आ गया माता जी, ये माता जी ने फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली ले लिया। और फिर मुझे मायापुर में वो मिले कपल, तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि आई वाज नोइंग दैट प्रभु जी वी वर हैविंग इंटीमेट रिलेशनशिप। तो वो जब माता जी प्रभु जी को मैंने मिला और उनकी वाइफ को जब मैंने देखा तिलक और कंठी माला और माला बीड बैग लेकर के, मैंने बोला माता जी आप क्या मैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने उनको पहले मिला था मैं। तब उन्होंने बोला, हस्बैंड ने मुझको बताया कि इनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस अभी इतनी आगे निकल गई है, इतनी सीरियसली इसने कृष्णा कॉन्शियसनेस ले लिया है कि मुझे लग रहा है कि मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली लिया ही नहीं है। द वे शी हैज टेकन अप। और मैंने माता जी को बोला कि क्या लगा आपको? तब वो माता जी ने सिर्फ मुझे एक ही चीज बोला कि मेरा हस्बैंड का जो सेक्रीफाइस देखा मैंने, कि वो कितना कर रहे हैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। और ये सब जो है वो सेक्रीफाइस देखने के बाद में आई केम टू अ कंक्लूजन, देयर इज नो हायर लव I can show to my husband than accepting Krishna consciousness. और आज के दिन ऐसी हालत है, माता जी is much more advanced than प्रभु जी. So what I mean to tell you is now you have to be careful. You have to choose by your action. क्या करना होगा। और दूसरा प्रभु आपने जो शब्द बोले ना, वो मुझे 100% विश्वास है ट्रू होंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार नोट किया आपके जो शब्द जब निकलते हैं ना वो जाते ही जाते हैं सही प्रभु। ऐसा हो जाए, मैं वो दिन बस इंतजार कर रही हूँ। और मुझे बताइए मुझे क्या स्टैंडर्ड और बढ़ाना होगा। ना मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, ना आप मुझे छोड़ने वाले हो। हम मिलते रहेंगे, हम बातें करते रहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रभु जी बोलने लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जिस दिन एकादशी स्टार्ट हुई थी तो मेरा कोई 128 की लाइन में नहीं था मैं प्रभु जी, बिल्कुल भी। लेकिन मैं दिन भर जपा करता रहा, मैं ऑफिस में भी नहीं गया उस दिन। बोलो चलो आज घर में ही जपा करते हैं। मेरे को बिल्कुल भी माइंड में कभी भी कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया कि मैं क्यों माला कर रहा हूँ। ऐसे करते प्रभु जी शाम के 5:30, 6:30, 7:30 ऐसे 2-3 घंटे थे वो ऐसे निकलते गए। मैं 128 में बिल्कुल भी नहीं था, मेरा कोई ऐसा भी नहीं था कि मैं 128 राउंड करूंगा प्रभु जी। फिर मैं 64 राउंड पे पहुंचा तो मेरे को लगा कि अभी तो 128 में मैं आधा ही पहुंचा हूं, और रात के शाम को 5-6 बज गए थे प्रभु जी। फिर मैंने क्या है कि आपका एक लास्ट में एक स्टेटमेंट सुना कि आपको कैसे भी करके रात को नींद नहीं आए तो 128 करके ही सोना है या फिर करना है। प्रभु जी हमारे एक ग्रुप के अंदर एक माता जी ने 108 राउंड किए थे, और वो उनका मैसेज आया था कि 108 राउंड। तो मैंने सोचा कि यार चलो हम 20-20 के राउंड में चल रहा था प्रभु जी में, तो 80 से 100 में जा रहा था मैं, चलो 100 तो कर ही लेते हैं। फिर वो एक माता जी का मैसेज आया कि मैंने 108 राउंड कर लिए। तो मैंने सोचा और माता जी ने कर लिए तो मैं भी 108 राउंड में जाता हूँ। फिर विपुल प्रभु और ये अपने ये प्रसाद प्रभु और ये मृदुला सिंह माता जी, ये सब क्या है कि चल रहे थे। तो मैंने देखा कि इनको देख के मेरे को क्या है कि प्रभु जी लगा कि चलो ठीक है मैं 108 तक तो जाता हूँ, कोई बात नहीं है। फिर मैं 108 पे जैसे ही प्रभु जी 104 पे गया तो मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक मीटिंग एंड हो गई थी। तो मैंने सोचा हो गई है। तो बात के अंदर प्रभु जी मेरे 104 से 4 राउंड बहुत ही मुश्किल से हुए। फिर आपने बोला था कि चलो ठीक है 108 हो गए, चलो कोई बात नहीं। मैं अपने आप से बहुत खुश था प्रभु जी, और मैं सो गया। सोने के बाद मेरे को 2 या 3 घंटे मुश्किल से, पहले नींद नहीं आई, फिर 2 या 3 घंटे आई। फिर मेरे 2:30 दुबई टाइम, इंडिया में 4 बज गए थे प्रभु जी उस टाइम में मेरी आंख खुली और मैं एकदम अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहा था। कोई भी मेरे को थकान नहीं थी, कोई इरिटेशन नहीं था दिमाग में कि क्यों किया, पानी नहीं पिया, ऐसा कोई नहीं था।
फिर जैसे ही मेरी वाइफ प्रभु जी यहाँ के 3 बजे उठी और 3 बजे उन्होंने आपका ये चालू किया, क्योंकि मेरे को चालू नहीं करना आता है, इन्होंने चालू किया तो ऑलरेडी भक्त है वो ज्वाइन कर रखे थे, 20-30 भक्त थे। तो मेरे को देख के प्रभु जी और उत्साह हो गया कि अभी यहाँ पे 3 बजे थे, इंडिया में 5:30 बजे थे। तो मैंने कहा मेरे पास में यहाँ के 3 से 5 बजे तक, यहाँ 6:30 बजे तक का क्या टाइम था, तो 2 घंटे का टाइम मेरे पास था। तो मेरे को प्रभु जी इतना उत्साह हुआ कि मैं 20 राउंड कितना 2 घंटे में हुआ कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता प्रभु जी। ये सब लोग आप भक्तों की कृपा से हुआ प्रभु जी मेरे लिए। और आपका जो राधा गोविंद अपने राधानाथ महाराज ने जो नाम दिया है वो रियल में वो नाम नहीं, उन्होंने जो कहते हैं ना महाराज जो नाम देते हैं वो करेक्ट देते हैं। आपका नाम आनंद वृंदावन प्रभु, रियल में प्रभु जी आपके साथ में आनंद ही है प्रभु जी। माफ करो, कोई शब्द नहीं है प्रभु जी रियल में मेरे अंदर। यस विपुल प्रभु, एनीथिंग एल्स? दर्शन मोहन प्रभु हमारे साथ पहले क्वेश्चन आंसर सेशन में जुड़े थे, इनको ऑफिस जाना था, अभी शायद ये ऑफिस में बैठे हैं, हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं अपनी रियलाइजेशन शेयर करने के लिए। जय अहमदाबाद, बोलो बोलो गुजराती। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभु जी सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और हृदय से सबका आभार व्यक्त करना थोड़ा चाहता हूँ। आवाज बराबर नहीं आ रहा, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रहा है? हाँ, अभी बराबर, परफेक्ट। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भक्तों की कृपा ही है कि जिनके कारण निर्जला भी हो गई और 128 माला भी हो गई। तो ऐसे तो कोई प्लान नहीं था कि मैं मतलब फ्राइडे को वर्किंग था प्रभु जी, तो उसके कारण मतलब बॉडी में स्ट्रेस वगैरह रहता था। तो मैं पहले दिन अगले दिन ही मैं, मेरा वाइफ और लड़का तीनों हमने सोचा था कि हम निर्जला करेंगे, लेकिन पहले ही इतना माइंड नहीं था कि निर्जला हो पाएगा क्या है। मैं क्योंकि बॉडी भी मेरा भी थोड़ा ऐसा स्ट्रेस था, तो हम लोग डिसाइड किया कि अगर हो पाएगा तो निर्जला करेंगे, नहीं तो फिर पानी से करेंगे। मैंने ऐसा रूल्स मतलब क्योंकि मेरा लड़के का भी तबीयत खराब था, उसका दांत में दर्द हो रहा था, तो मैं बोला ठीक है जैसा होगा हम वैसा ही करेंगे। फ्लेक्सिबल हो गए थे इस बार में, मतलब मेंटली ऐसा मेंटली। लेकिन जब आपका सुबह का लेक्चर सुना तो मैंने सोचा कि नहीं अब तो इस बार तो निर्जला भी करनी है और ये माला भी करनी है। तो सुबह में मेरे लड़के को तो दांत में दर्द था, तो उसने तो फिर माला किया। मैं बोला तुम्हारे से जितनी माला होती है तुम करो, लेकिन मैंने तो डिसाइड किया कि नहीं आज तो निर्जला भी करनी है और माला भक्तों के संग में रहेंगे तो माला भी तो करनी है। लेकिन दोपहर का टाइम हुआ तो मतलब मेरे को भी थोड़ा स्ट्रेस हुआ, तो मैंने आधा घंटा का थोड़ा ब्रेक भी ले लिया। फिर दोपहर के बाद मेरी वाइफ का तबीयत भी थोड़ा ऐसा डाउन हो गया, तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम ऐसा करो, मैं फोर्स नहीं करता हूँ कि तुम निर्जला करो और 128 माला करो, क्योंकि उसका उस टाइम पे लगभग 60 या 64 माला हो गया था दोपहर तक। तो वो बोली कि नहीं मैं तो निर्जला करना चाहती हूँ। तो मैं बोला ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लो तुम, तो वो भी उसने भी आधा घंटा रेस्ट कर लिया। तो मैं बोला अब तुमको जैसा फील हो रहा है तो अगर ठीक लग रहा है तो फिर माला में बैठ जाओ। फिर वो भी बैठ गई और उसने भी 128 माला कर ली और मैंने भी 140 माला हो गई। फिर शाम को जब आपने जैसे बताया था कि भगवान के सामने कृष्ण के सामने जाके कुछ प्रेयर करना है, सच्चे हृदय से प्रेयर करना है, तो जब हम प्रेयर में सच्चे हृदय से प्रेयर कर रहा था तो भगवान को सामने मेरे सामने मटेरियल थॉट भी आ रहे थे। आपने बोला था कि कुछ मांगना नहीं है, लेकिन हम तो कलयुग के जीव है और वो मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो प्रैक्टिकली तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो मैं भगवान को यही बोल रहा था कि प्रभु जी ने तो बोल दिया कि मांगना नहीं है, लेकिन भगवान मैं प्रैक्टिकली अगर नहीं मांगता हूँ तो फिर कल जाके कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि मेरे को मांगना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मेरे को ऐसा सिचुएशन मत करना, क्रिएट करना कि मेरे को फिर उस टाइम पे क्योंकि मांगना ही पड़े और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। और मैं सही बता रहा हूँ प्रभु जी, जो निर्जला होने के बाद में मेरे को इतना ब्लिस हुआ। और हम जब रात में सोने के टाइम पे मैं और माता जी हम लोग बैठे तो बोला कि सही में भक्तों के संग में ही ये 128 माला हो पाया, नहीं तो ये हो नहीं पाता हम लोग से। ये भक्तों की कृपा ही है और उनके संग में ही ये हो पाता है। और उसके बाद से जब मतलब उसके पहले में थोड़ा फ्लेक्सिबल था और टाइम के बारे में जैसे विपुल प्रभु जी बताते हैं ना कि जब हमारे पास टाइम होता है माला करने का तब हम लोग अपना सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह देखते रहते हैं और टाइम थोड़ा निकाल देते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो हम जूम के सामने डीओटी के सामने हम बताते हैं कि हम बहुत सीरियस है, लेकिन जब बैकग्राउंड में जाते हैं तो कहीं कहीं बार हम लोग अपना टाइम को इतना वेस्ट कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये निर्जला का 128 माला होने के बाद में मुझे टाइम का इतना ये हो गया कि नहीं
हमारे पास जितना भी टाइम है उसको हमको कृष्णा की सेवा में यूज करना ही पड़ेगा। पहले तो क्या था, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दोनों करता था, लेकिन उसके बाद मेरा ये एक डिसिप्लिन हो गया कि नहीं, टाइम हमारे पास मटेरियल लाइफ को बैलेंस करते हुए जितना भी टाइम मिलता है उसको स्पिरिचुअल लाइफ के लिए यूज करना है प्रभु जी। तो मैं तो सच्चे हृदय से आपका और सभी भक्तों का, खास करके विपुल प्रभु और प्रसाद प्रभु जी, वो सबका सबसे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जैसे माता जी ने, वो सुनंदा मुदे माता जी ने और प्रसाद प्रभु जी ने कहा, ये सब वो प्रैक्टिकल चीजें बताई, वो सभी चीजें आज एप्लीकेबल है प्रभु जी। और आपका सच्चे हृदय से और आपका धन्यवाद करूंगा। और प्रभु जी हमें थोड़ी हमारे लिए भी प्रार्थना करिए कि हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे ना रहे और आपके साथ निकल जाए प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। यस विपुल जी। जी वेणुवती माता जी कैन शेयर नाउ। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। माता जी, before you start now, I'm so happy to see your consistency. Thank you very much. I could see it many times. You are going to some places, one place to another, but yet you keep your video on and maintain your Krishna consciousness. So nice and so much happy to see your consistency. Thank you very much. Thank you प्रभु जी। Thank you. प्रभु जी बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। आपकी वजह से मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना राउंड्स कर पाऊंगी, क्योंकि 64 राउंड्स भी मैं कभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं घर में सिंगल डिवोटी हूँ प्रभु जी। तो मैं बहुत इच्छा रहती करने की, लेकिन हस्बैंड को टिफिन ये वो ना देना रहता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कभी भी 64 राउंड्स भी कभी नहीं किया। तो लेकिन मैं इस बार इच्छा थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी बेटी डॉटर आई भी है घर पे। तो मैं उसको पूछी कि तुम थोड़ा हेल्प करोगी किचन में, तो मेरी इच्छा है कि मैं करूँ करके। तो उसने कहा ठीक है मम्मी। तो इसलिए मैं कैसे समहाउ प्रभु जी आपकी कृपा की वजह से, भक्तों की कृपा की वजह से मैं मतलब मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था प्रभु जी 8:30 तक, क्योंकि बीच बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था प्रभु जी। तो लेकिन फिर जब बाद में फिर से स्टार्ट हुआ तो जूम तो मैंने 11:30 तक मेरा राउंड्स पूरा कर लिया प्रभु जी। तो बहुत 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 और जब से आपका जूम ज्वाइन की हूँ ये, तब से मेरा राउंड्स भी बहुत अच्छा हो गया प्रभु जी। कभी कभी तो मैं मॉर्निंग में राउंड्स भी कंप्लीट नहीं कर पाती थी प्रभु जी, लेकिन जब से मैंने आपकी शरण ली, आप ये सेशन ज्वाइन किया, तब से मेरा मॉर्निंग में ही खत्म हो जाता है प्रभु जी ऑलमोस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लेट नाइट सो गई हूँ प्रभु जी, तो भले कभी कभी मेरे 2-4 राउंड्स रह जाते हैं, अदरवाइज मेरा मॉर्निंग में जप्पा कंप्लीट हो जाता है। तो सब आपकी वजह से प्रभु जी, आपका एसोसिएशन, आपकी कृपा और आप भक्तों की कृपा की वजह से मेरा चैंटिंग भी थोड़ा अच्छा हो गया प्रभु जी, और मैं इतना कर पाई हूँ। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी, बहुत दिल से आपको बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बस मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मेरे फैमिली के लिए, कि वो लोग भी भक्ति में आ सके प्रभु जी। बस यही यही प्रार्थना है प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी कि मैं इतना राउंड्स कर पाई और आगे भी इसमें जुड़ी रहूं प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। यस विपुल जी। तेजश्री माता जी आप बोल सकते हैं। ओह हरि बोल माता जी पूना। यस बोलो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडक प्रणाम टू ईच एंड एवरी devotee and our management team. Prabhuji, actually I want to confess, like निर्जला एकादशी पे मैं 128 राउंड नहीं कर पाई प्रभुजी। मैंने अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, प्रभु जी का क्लास, प्रभु जी का सेवा, गौरांग, मैंने सब किया। मैंने निर्जला एकादशी की, बट आई कुड नॉट डू 128 राउंड। आई एम सॉरी प्रभु जी। It is not sorry. Yeah, but I could. No problem. I could not do, Prabhu. You should be very clear about it, Mataji. Radhanath Maharaj has always told me one sentence, and which I take it very seriously in my life. He said the most important and a more favorable devotee is that devotee who is in and out clean in his life. I see in you. I still remember one time, Mataji, you have asked me one question. जब मैंने एक पेरेंटिंग का क्लास दिया था, तभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट। एंड आपने पूछा था कि मैं जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई वाज रियली फीलिंग दैट दिस माताजी इज वेरी इन एंड आउट
showing herself clean in her heart. And the most important thing Krishna likes it is hardcore straightforwardness and simplicity. And in which I see it, Mataji, you are having a very high chances of getting Krishna's mercy very fast because you are in and out trying to be clean. Very nice. Just keep it up. Just keep it up. Finally, this is what we want in Krishna consciousness. In and out clean life. No hypocrisy, no गड़बड़ वाला thing. In and out, जो है अंदर है वही बाहर है, बस उसके वजह से कृष्णा की कृपा बहुत जल्दी आ जाती है. हमारा प्रॉब्लम ये है ना, हमारा रूल बहुत अलग अलग होता है ना, हर जगह पे डिप्लोमेसी करते, पॉलिटिक्स करते, उल्टा सीधा करते, और उसकी वजह से हमारे हृदय खुला नहीं होता है. ठीक है, नाइस. एनीथिंग यू वांटेड टू स्पीक, एनीथिंग माता जी? थैंक यू सो मच प्रभु जी, बट बस मुझे निकाल मत देना ग्रुप से, मैंने 128 राउंड नहीं किया. आप हमको मत निकालना. नहीं प्रभु जी, आपकी वजह से मेरा जपा, मेरा इवन फैमिली लाइफ भी बहुत बहुत अच्छा हो रहा है. आई मीन just because of all devotees and this association. This is the sign of a devotee. This is the sign of Krishna consciousness. ये मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ कि जब भी कोई भी डिवोटी सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस लेता है तो पहला उसका रिएक्शन इसके ये आता है कि उसके फैमिली मेंबर्स, उसके रिलेटिव्स, उसके बिजनेस एसोसिएट्स, उसके अंदर ही वो लोग सामने से तुमको बताते हैं कि तुम पहले जैसा नहीं रहा है, अलग हो गया है. ये दिखा रहा है क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस की पोटेंसी आती है. लेट गो करने की आदत हो जाती है. लेट गो करने की आदत, रिजिडिटी छोड़ देते हैं हम लोग, और जब रिजिडिटी और लेट गो करने की आदत छोड़ देते तो सबको अप्रिशिएट होने लगता है. तो दिस इज एवरीथिंग, दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर एवरीबडी, एंड दिस इज द साइन दैट यू आर टेकिंग सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस. वेरी नाइस. और एक प्रार्थना थी प्रभु जी. आई मीन अभी मुझे थोड़ा जॉब में कुछ नया ऑफर मिल रहा है, कुछ हाइक मिल रही है, बट मैं प्रार्थना कर रही हूँ मेरे लड्डू गोपाल से कि मुझे ये सब देख के मैं हड़बड़ा ना जाऊं, मेरा कृष्णा भक्ति ना छूट जाए. मैं डर रही हूँ प्रभु जी की. माता जी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, if it is something that way that आपका फाइनेंशियल क्राइसिस इतना है कि there is no other option, then we cannot do anything. But for God's sake, don't go for higher promotion or higher job by which you are compromising your Krishna consciousness. We don't want. Yes, Prabhuji. I'll Yeah, please make this as a point. अगर आपके पास जॉब अच्छा मिला, अच्छा सैलरी मिला, और आपको टाइम ज्यादा देना पड़े, और वो टाइम की वजह से आप आपका फैमिली को जस्टिस नहीं दे पाए, आपका हस्बैंड को जस्टिस नहीं दे पावे, आपके बच्चे को जस्टिस नहीं दे पावे, और आपकी भक्ति डिस्टर्ब हो जावे, माता जी थोड़ा पैसा कम मिलेगा ना तो चलेगा, क्योंकि जो है फैमिली मेंबर्स को क्वालिटी टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन मनी. मैंने कितने डिवोटीज को देखा है, डिवोटीज के बच्चे को देखा है कि वो डिवोटी के बच्चे मुझे हमेशा कहते हैं कि मेरे मम्मी के पास टाइम नहीं है क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं. तो जो है फिर एक बार तो एक डिवोटी ने, बच्चे ने तो क्या किया कि मम्मी तुमको कितना पगार मिलता है? तो मम्मी ने बोला मेरे को इतना पगार मिलता है. क्योंकि 1 घंटे का कितना पैसा होता है? तो उन्होंने बोला 500 रुपया होता है. तो वो बच्चे ने क्या किया कि वो बच्चे ने जो है अपने सेविंग्स में से 500 रुपया निकाला धीरे धीरे बचा करके, और वो 500 रुपया बचा करके वो मम्मी को दिया कि मम्मी ये लो 500 रुपया, आप मेरे को अभी 1 घंटा दो. दिस टाइप ऑफ ए लाइफ वी डोंट वांट टू स्टे. माता जी, ऐसा नहीं चाहिए हमको. प्रभु जी, बहुत गिल्ट आता है मुझे जब भी मैं जॉब के लिए जाती हूँ या गौरांग बोलता है मम्मा मत जाओ, तो बहुत ये लगता है. बट नो माता जी, इफ इट इज रिक्वायर्ड यू हैव टू डू इट बिकॉज कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट. But if it is not required, don't get carried away. I have a very clarity, Mataji. I don't appreciate Mataji's going out and working outside. But if it is required, we have no option. But it should not be for your personal sense gratification. Then it should not be allowed. ठीक है? Sorry. Hari Bol. Thank you so much, Prabhuji. Hari Bol. Yes, Vipul ji, anything else? Suresha Mataji. Oh, Hari Bol, Mataji, Durgapur. I was in Mayapur. I came to know from Mayapur, it is only 3 hours distance is Durgapur. There is one very nice family staying in Durgapur, and I was remembering you, Mataji, in Mayapur, because I remember that Durgapur name. So Durgapur, there is one very nice couple. हमारे एक बहुत सुंदर ब्रह्मचारी है, जो है उसकी सिस्टर और उसका ब्रदर इन लॉ वहीं पे रहते हैं. तो मुझे तभी उसका मायापुर से 3 घंटे का रास्ता है, ऐसा मुझे बताया. एनीवे, सो नाइस टू सी यू. बोलो माता जी.
हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने पिछले ईयर भी निर्जला एकादशी करा था, पर 128 राउंड सोचना मेरे लिए बहुत ही परे था, पर इस बार जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी कृपा से ये सारी चीजें हो पाई है। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और प्रभु जी पता है इससे एक आइडिया हो गया कि 192 भी कर सकते हैं। मतलब पहले ऐसा लगता था नहीं पिछले साल भी मैं 192 मिस करके अभी तक गिल्ट है कि मैंने क्यों नहीं करा। फिर 128 हो गया तो लगा कि नहीं अब तो हो सकता है 192। एंड एकादशी पे भी जब मैं 64 करती हूँ तो आप लोगों के साथ मेरा 64 कभी कंप्लीट नहीं होता, मुझे 12 बजे के बाद भी बैठे ही रहना पड़ता है 2-3 बजे तक। लेकिन अभी से सोचा कि हाँ अगर मैं 2 बजे या 3 बजे उठकर करती हूँ तो आपके टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी, तो वो एक आइडिया मिलते गया कि मैं शायद कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपके एसोसिएशन से ऐसा हुआ। हरे कृष्ण। हरे माता जी, आई विल बी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यू। You are a young Mataji. In future, you will get married. You might be by Krishna's mercy, हो सकता है भगवान आपके सीरियसली करे कि आपका जो है आपको अच्छा ही हस्बैंड मिले कि जो आपको सपोर्ट देवे। लेकिन अगर ऐसा भी हो गया कि आपको ऐसा हस्बैंड ना मिले कि जो आपको सपोर्ट ना देवे आपकी कृष्णा भक्ति के अंदर, तो आप इतना मैच्योरिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अभी ले लेना है कि वो स्थिति के अंदर भी, इन फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन के अंदर भी आपकी कृष्णा भक्ति मेंटेन कर पाए और फैमिली को कॉम्प्रोमाइज ना करे, बिकॉज दैट विल बी द टेस्ट दैट विल बी कमिंग फॉर यू। सो डोंट बी सो मच रिजिड, डोंट बी सो मच रिजिड फॉर a Mataji. The biggest test is after getting married to take care of the husband, take care of the children, take care of the family members and maintain Krishna consciousness. That is the biggest test. For a man, the biggest test is going out, working outside, earning money and maintaining Krishna consciousness. That is a test for a man. So आपका भी टेस्ट आएगा, तो उसके मेरा आपको यही रिक्वेस्ट है, because you are coming regularly. I see you chanting so seriously, so I felt that I should tell you, Mataji, please ऐसा रिजिडिटी मत रखना कि शादी के बाद में भी मेरे को ऐसा ही जीने का है, ऐसा नहीं जिएगा तो मैं ऐसा कर लूंगी। ऐसा जब रिजिडिटी आएगा ना तो कृष्णा उधर भी आपको किक मारेंगे, क्योंकि सबकी लाइफ में प्योरिफिकेशन चाहिए, सबको किक मिलने वाला है, सबकी लाइफ में वो किक लेगी, जब मिलेगी तब वो किक मिलते वक्त भी जो है आप इतनी मैच्योरिटी के साथ में सबको संभाल भी रहो और आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करो। वो मेंटेन कैसा होगा, कुछ आप एडजस्टमेंट कृष्णा आपको इंस्पायर करेंगे वो टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं कर देना कि जिससे जो है वो रिजिडिटी की वजह से आपका फैमिली डिस्टर्ब हो जाए। नो, उस समय आपकी लाइफ के अंदर इतना सैक्रिफाइसिंग नेचर आना चाहिए कि आपके फैमिली मेंबर्स इतने खुश हो जाएंगे, फिर आपको सामने से बोलेंगे अभी आप माला करना चालू करो। दैट इज अ परफेक्ट मैच्योरिटी, नॉट रिजिडिटी, मेरे को चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है। ऐसा जब होता है ना तब वो फैमिली वाले रिटेलिएट करते हैं। लेकिन जब आप इतना सैक्रिफाइस देते हो और आप उधर सैक्रिफाइस देते हो और आप आपकी ऑस्टेरिटी अंदर अंदर करते जाओगे और आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करोगे इंटरनली और बाहर उसके लिए लाइफ दे दोगे और वो लंबे समय थोड़ा चलेगा, फिर बाद में वो लोग इतने कन्विंस हो जाने के बाद में आपको टाइम देंगे। दैट इज अ मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तभी आपने सक्सेसफुल होगे। sorry, I am not supposed to speak all these things, but Thank you so much प्रभु जी for the advice. Thank you so much प्रभु जी। आप मेरे लिए प्रे करना प्लीज। मेरी चैंटिंग सीरियस नहीं जा रही है, वो देखने से लगता है कि आंखें बंद करके कर रही हूँ, पर अंदर बहुत सारे कचरा चलते रहते हैं। सो प्लीज प्रे करना प्रभु जी। Very nice. Thank you. Hari Bol, Hare Krishna. Yes, people, Prabhu, we can end it now. Anybody else? प्रभु जी, there is one माता जी, वो साउथ अफ्रीका डरबन से हैं और उनको एक प्रश्न भी पूछना था और उनका प्रश्न थोड़ा सीरियस मुझे लगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ अगर उनको मौका दिया जा सके प्रश्न पूछने का तो। ठीक है प्रभु। अनंग मंजरी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। Can you see me, ma? Prabhu? Yeah, I can hear you, माता जी। आप कहाँ से बैठे हैं? आप कहाँ से हो माता जी? I don't speak. I can't speak Hindi properly. I can understand, but I speak English. I'm from South Africa. Yeah, yeah. Dandavat pranams to you, Prabhu. Thank you so much for this wonderful program. I'm so grateful. And I joined chanting on Facebook for 1.5 years now. And I chanted on Nirjala Ekadasi about 108 rounds.
And my health is not so good. Sometimes I get very tired and I got severe arthritis. And for 1 year, I chanted 64 rounds after I saw your program. And after that, I was not well. Then I went back to 40 rounds because I was not well. And now I want to come back to 64. And on Ekadasi, I do chant 64. But I just got this fear that sometimes when I chant so many rounds, I get so much of purification, relationship problem. And I feel like, I just got this fear, like something's going to happen when I finish chant so many rounds. So why am I feeling like that? Mataji, I couldn't get you properly. What is exactly you have a problem, Mataji? When I chant like extra rounds, I get a lot of purification. So I don't know how to manage that. Yes. Manage means what? Proji, I'll just summarize. So माता जी का प्रश्न ये है कि डेली 1 साल तक इन्होंने 64 राउंड्स किया, उसके बाद इनकी लाइफ में जितना ज्यादा माला इन्होंने किया, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ी, तो इनको ऐसा लगता है कि कृष्णा कुछ प्यूरिफिकेशन दे रहे हैं, थोड़ा रिलेशनशिप प्रॉब्लम या दूसरी प्रॉब्लम्स, तो और हेल्थ की भी प्रॉब्लम काफी है, आर्थराइटिस है, तो उसकी वजह से 64 डेली करने की बजाय 64 से इनके राउंड्स कम हो गए, डेली 40 पर आ गई। तो अभी इनका क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्ट्रगल करती हैं अपने राउंड्स बढ़ाने के लिए, तो उनको लगता है कि प्यूरिफिकेशन और ज्यादा आएगा और शायद मैं नहीं ले पाऊंगी, I might not be able to take so much purification, तो what should I do? Mataji, there are two things we have to do it. First of all, you should have a very, very strong association of very sincere devotees. If you have a very strong association of sincere devotees, this type of a thoughts will not come in your life. Because if you have a good, this material life itself is a problem. And one thing is there, one thing is always there, that whenever Krishna wants to give you something very high, he wants to check it out, whether you are fit for it or not. You are fit candidate or not. For example, when any metal has been tested, whether that metal is metal or a gold, it has to be put into fire. Unless until it's not been put into the fire, it cannot be tested whether that metal is gold or something other than that. So Krishna wants to give you, Krishna wants to check it out, whether you really are fit candidate for giving his mercy or not. And if you go away from it, that means you are proving to Krishna that, no, I'm not a fit candidate for getting the mercy. So my humble request is, if you keep a very strong association of sincere devotees, and if you are sincere, you will get sincere devotees in Africa also. Krishna will provide it. Just have a strong association of nice devotees over there. They will inspire you. Mataji, all our acharyas are fools. All our acharyas have given so much time, and all our acharyas are telling very clearly in their life to go on increasing their rounds. Why they are telling? Just because they know it, that Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Evai Kevalam. There is no other option in our life other than chanting the holy name. So our acharyas are not going to cheat us. Our acharyas are not going to make us completely in a wrong track, take us in the wrong track. So you have to have a faith in our acharyas. And our acharyas are, when I'm told to increase our chanting more and more, that means they are not wrong. Problem is with ourselves. And that problem can be sorted out by having a very strong association of sincere devotees. And you have to always understand, whenever you wanted to get something good thing, you have to pay the price. Nothing is going to come cheap in this material world. I can tell you, all these devotees who are sitting over here, everybody is struggling. I can tell you because most of the devotees, they come and talk with me. And most of the devotees, I know them. And I know very clearly, everybody is struggling. Everybody is struggling, and there are many devotees who are struggling in that situation also. They are maintaining their Krishna consciousness. And because they are doing that, Krishna is giving them more and more taste in their Krishna consciousness. So that is applicable for everybody, Mataji. So my request is, don't get carried away. Just be very strong in your sadhana. Have a good association of sincere devotees, and Krishna will take care of it. But don't compromise in reducing your rounds, because that is a trap of Maya to take you away from devotional life. Is it okay? Thank you so much. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. प्रभु जी, एक वैसे तो समय बहुत हो गया है, नवनीतिका माता जी वांट टू शेयर और whatever you say. ठीक है, माता जी हरि बोल. She is to come regularly to our 64 rounds. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. हरि बोल, हरि बोल.
हरे कृष्णा। आपका सभी मैनेजमेंट टीम का और आपका धन्यवाद देती हूँ हृदय से, क्योंकि आपके वजह से ही मैं कर पाई। क्योंकि मेरा हेल्थ 2 महीने से इतना वीक है, मैं बता नहीं सकती। मुझे नहीं ऐसा उम्मीद ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, फिर भी किया मैंने, आपकी कृपा से हो गया। मगर मेरा बैक पेन बहुत है प्रभु जी, तो मेरा 8:30-9 बजे तक 124 हो गया था। फिर मैं बोला कि 5 मिनट में लेट जाती हूँ, तो मेरा नींद ही लग गया उसमें, क्योंकि मुझे मनके का प्रॉब्लम है। तो फिर 2:30 बजे उठ के मैंने वो 4 राउंड पूरा किया। तो कृपा और आपका अमृत वचन बार बार याद आता है। अभी मैं लेट, हमारा पानी भी लेट आता है 10 बजे, तो सोने को 11:30 हो जाते, सुबह उठ नहीं पाते। मगर पहला हम लोग आपके साथ जपा करते हैं, फिर बाद में मैं 10 बजे सो जाती हूँ प्रसाद लेके। तो आपके अमृत वचन हमको बहुत आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। बाकी सब काम छोड़ देते हैं, पहले आपके साथ जपा में बैठ जाते हैं। तो आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी का। हरे कृष्ण। Yes, Vipul Prabhu, anything else? Prabhuji, we can stop now. Thank you very much, Prabhu. All I can say is, please keep me whatever I am. नफट हूँ, गड़बड़ वाला हूँ, रफ एंड टफ बोलता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कभी भी किसी का सेंटिमेंट्स को बराबर ध्यान भी नहीं देता हूँ, तो भी मुझे टॉलरेट कर। मेरे लिए कोई होप नहीं है। मुझे आप लोग के साथ में रहना है, मुझे आप लोग के साथ में रहना है। कैसा भी मुझे संभाल लो, जिससे मैं भक्ति में टिक पाऊँ। प्रभु, आई नीड यू। I don't know whether you need me or not, but I need you. I'm saying it from my heart, Prabhu, I need it. Without devotees association, to survive in devotional life is next to impossible. We are not an elevated soul like Haridas Thakur, who can sit in one of the caves and chant 192 rounds without association. That is very, very high standard. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to say that this high standard we cannot achieve in Kali Yuga so easily. So, Prabhu, we need association. And I am very clear about it. Because we are all together, that's why we are able to achieve something very, very high feat in our Krishna consciousness. But if we are staying, if we feel that we can stay and we can do it alone, remember your downfall has started. Radhanath Maharaj has told me one statement very nicely, and my humble request is before I end it out, Radhanath Maharaj has told me one heavy statement. And that मैं हिंदी में बोलता हूँ। राधानाथ महाराज ने एक बहुत heavy statement मुझे बोला है, और वो heavy statement ये है, जब भी तुमको ऐसा लगे कि मेरा जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरे भक्तों के संग के बिना मैं मेंटेन कर पाऊंगा, समझ लेना तुम्हारी दुर्गति शुरू हो गई है, तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया है। एक सिंसियर भक्त होगा, उसके अंदर, हृदय के अंदर यही कॉन्शियसनेस होगी कि मैं भक्तों के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, भक्तों के बिना नहीं कर सकता, मुझे भक्तों की सख्त जरूरत है, मैं भक्तों के साथ में जीना चाहता हूं और भक्तों के साथ में मरना चाहता हूं। ये जब कॉन्शियसनेस होगी ना, तब महाप्रभु की कृपा मिलती जाएगी आपको। So let us end it this way. We will be meeting tomorrow. Tomorrow I'm going to give a very heavy class in the morning. What is real intelligence? Thank you very much. We'll end it, Prabhuji. Please मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रभु, there are many devotees are speaking something about me, but I know what I am. प्रभु, मेरे अनर्थ नहीं निकले, मेरी शॉर्टकमिंग नहीं गई है, मेरा नेचर ऐसा सुधरा हूं, डेफिनेटली सुधरा, नहीं तो मैं कृष्ण भक्ति क्यों करूंगा। लेकिन प्रभु अप्रूट नहीं हुए, मेरी उम्र भी 60 साल की हो गई है, ज्यादा जीने वाला नहीं हूं, और अभी भी मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रही है मेरा अनर्थ देख करके मुझे कृष्ण स्वीकारेंगे कि नहीं। मुझे जो है प्रभु आप लोग सब लोग की कृपा की सख्त जरूरत है। ऐसा मत समझना मैं कुछ एलिवेटेड हूं। आई हैव टू टेल यू वेरी ब्लंटली, आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी। आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी। Pure devotee is only that devotee who has no anarthas. I have anarthas. I can cheat everybody, but I can't cheat Mahaprabhu. I know very clearly, Prabhu. I know what I am. So, Prabhu, all glories goes to Radhanath Swami. I am a fallen soul, struggling with my anarthas. And because I speak what Maharaj has given you, that's why it is giving you so much benefit. Otherwise, I am just an intermediary and instrument. But all the glories is coming from Radhanath Maharaj. So with that thing, please remember, I am just like you only, Prabhu. Don't take me something ऊपर। मेरे को मालूम है मेरी क्या औकात है। मैं सबको धोखा दे सकता हूँ, लेकिन मैं महाप्रभु को धोखा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है प्रभु जी, we'll end it. People, should we end it? We will meet tomorrow in the morning as usual. हरे कृष्णा। वंच कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद। तू आवाज